Okay, good morning and happy new year, everyone. Happy New Year, ma'am. Thank you. Happy New Year, ma'am. Thank Happy you. New Year, ma'am. Thank Happy New you. Year, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you. Sabaike, thank you. Acha, let us start. Okay. So today's lecture is on the basically we are learning about the hydrograph, right? One module which is under your hydrology. So hydrograph is basically discharge versus time graph, plot between discharge versus time. Okay. So today we are learning S curve. Now, how to derive different hydrograph from the given hydrograph? We were learning all these things, right? So, one method is your S-curve method. First method that we have learned is the superimposition method. Now, the second method, and for that method to follow, we need to fulfill two criteria. We have learned it. Okay, what are those two criteria? Now, if there are other conditions which can't be fulfilled by the superimposition method, then which method we have to use? So another method that we can use for another conditions are what? S curve method. Okay, so in your semesters or internals also, we can say that this method S curve is very important. Okay, you may face some problem, some numericals they will give you in the questions also, they may ask you. Okay, so today we will learn this S curve. So what are the topic that we will learn? First, this is the revision of the previous lectures. Okay, we will solve one numerical based on the unit hydrograph. Then we will go for the S curve method. Okay, so S curve is also known as summation curve method. Why summation? We will see. What will be the definition? We will learn. Okay, how we can derive from the given unit hydrograph. They will give you a unit hydrograph. Then they will ask you to derive S curve. Okay, how we will see. How we will do that, we will see that also. And now unit hydrograph is given. Now they will ask you to calculate S curve is given. Now they will ask you to derive unit hydrograph from the S curve. Now how we will do that, we will also see that using some example. And lastly, we will, if time permits, then we will go for the numericals. Okay, based on all these concepts. So this is the first, this is a revision type. Okay, this we have already learned in our previous lecture. So what is the question say? The ordinates of a 6-hour unit hydrograph are given. So this is what? This is basically the 6 hours unit hydrograph. Now what is unit hydrograph? Unit hydrograph is the, basically it is the direct runoff hydrograph. That means we have to subtract base flow from the flood hydrograph. Okay, we will get one hydrograph that is direct runoff hydrograph. Okay, and for direct runoff hydrograph for 1 centimeter rainfall excess. Now that term is known as the unit hydrograph. Okay, so basically unit hydrograph is the DRH for 1 centimeter rainfall. Okay, so the ordinates are given. Ordinates mean time versus discharge. Okay, hydrograph means what? Discharge versus time plot. So ordinates are given here. Okay, a storm had 3 successive 6-hour intervals of the rainfall magnitude 3 centimeter, 5 centimeter, 4 centimeter. That means what? Suppose from morning 5 1 a.m. to 6 a.m. there was rainfall for 6-hour duration. There was rainfall with your rainfall excess of 3 centimeter. Okay, now after that, after 6 p.m. till 12 p.m. what happened? Sorry, 6 a.m. to 12 p.m. another rainfall occurred of 5 centimeter magnitude. Okay, then after that one, 4 centimeter rainfall occurred for next 6 hours. Okay, so like that. So for consecutive successive 6-hour, 3 rainfalls occur with different magnitudes. These are the magnitude of the rainfall. Okay, 3 centimeter, 5 centimeter, 4 centimeter, like that. Now, assuming phi index is nothing but the loss. We have already learned phi index. Okay, in infiltration, phi index is what? That is the losses due to losses, or we can say abstract of precipitation. Okay, it signifies the abstraction of precipitation. That means the losses in precipitation means it will not include in the runoff. So that is what phi index. Okay, so phi index is what?
How much? 0.2 centimeter. Okay, so rainfall occurred of 3 centimeter and your phi index is of 0.2 centimeter per hour. Okay, so using this we have to find what is the rainfall excess, okay, in centimeter. Okay, so what is the rainfall excess? That means the rainfall excess is nothing but the runoff. We know runoff is what? Precipitation minus phi index, right? Minus losses. Okay, we know that your runoff will be precipitation, whatever rainfall occur minus loss will give you runoff. Okay, surface runoff, whatever runoff. So we know precipitation, that is this one, but it is in centimeter and your loss is in centimeter per hour. So we have to convert this into centimeter. Okay, then if we subtract, then we can easily find out what is the runoff, or we can say what is the rainfall excess for particular precipitation. And what are the other data they have given? Base flow of 30 cumex. Cumex means meter cube per second. Okay, so using all this data, determine the resulting hydrograph. Resulting hydrograph means hydrograph of this 3 centimeter precipitation, hydrograph of this 5 centimeter precipitation, hydrograph of this 4 centimeter precipitation. If we merge them, then we will get one resultant, or we can say if we add all this hydrograph, we will get one resulting hydrograph. Okay, so for that they have asked you what are the ordinates of that final hydrograph. Okay, what we have to do? We have to add all these things. Okay, so what is given? Phi index is given, your 0.2 centimeter. Okay, so what is total loss? Now each precipitation is for how much duration? Each rainfall is for 6-hour durations. Okay, so per hour your loss is 0.2 centimeter. So for 6 hours, what is the loss? 0.2 into 6. Okay, so 1.2 centimeter will be the loss in each rainfall. Okay, so this one is your 1.12 centimeter. Now, what is the rainfall excess for precipitation of 3 centimeter? Tell me, what will be the value of rainfall excess or runoff for if your precipitation is 3 centimeter? Your precipitation is 3 centimeter, your loss is 1.2 centimeter. So what is the rainfall excess for first case? कितना होगा? Runoff equals to क्या बोले थे हम? Precipitation minus loss. Okay, so what is the runoff? Runoff or rainfall excess? If your precipitation is 3 and your phi index is how much? It is 1.8. Yes, so for 0 to 6 hours, your precipitation is 3 centimeter. Loss is how much? 0.2 into 6, which is your 1.2. Okay, and your effective rainfall, or we can say runoff, is 1.8. 3 centimeter precipitation minus loss is this much. Okay, for next rainfall of precipitation 5 centimeter, loss will be same. Okay, so your effective rainfall will be this minus this 3.8, and for next successive, which is precipitation is 4 centimeter, loss is again same 1.2. So if we subtract this, we will get 2.8 centimeter. So these are the runoff, or we can say in terms of your hydrograph, we know this is as excess runoff, excess rainfall. Okay, it is known as excess rainfall. This data will be required. Why? Because your unit hydrograph, these are what? These are the data for 1 centimeter excess rainfall. Okay, these data are for unit hydrograph. मतलब कि ये जो डाटा है तुम्हारा यूनिट हाइड्रोग्राफ का है डाटा, राइट? सो यूनिट हाइड्रोग्राफ इज इक्वल्स टू व्हाट? DRH for 1 centimeter. Now what we have to do? We have to find DRH of first is 1.8, फिर DRH of 3.8, फिर DRH of 2.8. ठीक है? If you know the DRH of 1 centimeter, then what will be the DRH of 1.8 centimeter? Simply multiplication. मतलब 1 centimeter का अगर इतना डिस्चार्ज होगा, तो ऑब्वियसली इन दिस टाइम इतना डिस्चार्ज होगा, तो तुम्हारा 1.8 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा? ये जितना भी है इनटू 1.8 टाइम्स. ओके, ये वाला तुम्हारा सेकेंड कंडीशन जो था, सेकेंड एजम्पशन ऑफ द यूनिट हाइड्रोग्राफ था. ठीक है, लीनियर, सॉरी फर्स्ट एजम्पशन जो था लीनियर वाला. ओके, सो दिस आर द ऑर्डिनेट्स. इसको हम ऐसे कर दिया है. ठीक है, वही है 0 का 0 है, 6 का 250 है. Okay, so first what we have to calculate? We have to calculate the ordinates of 6 hours and 1.8 centimeter DRH. Okay, इसका हमको चाहिए, क्योंकि देखो तुम्हारा ये वाला कितना है ड्यूरेशन. दिस इज व्हाट? ड्यूरेशन इज योर 6 hour.
यूनिट हाइड्रोग्राफ का ड्यूरेशन भी 6 आवर है, और जो भी रेनफॉल हो रहा है उसका रिजल्ट निकालने के लिए बोला गया, उसका भी ड्यूरेशन 6 आवर्स ही है। ओके, तो सिंपली हमको क्या करना है, यहाँ पे यूनिट हाइड्रोग्राफ से डीआरएच में कन्वर्ट कर देना है। ओके, सो ऑर्डिनेट्स ऑफ 6 आवर्स एंड 1.8 सेंटीमीटर डीआरएच, ये क्या है, दिस इज फॉर 1 सेंटीमीटर, और 1.8 के लिए करेंगे तो क्या करना है, वी हैव टू सिंपली मल्टीप्लाई, जो भी ये ऑर्डिनेट्स है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.8 से। ओके, क्लियर है? नाउ ऑर्डिनेट्स ऑफ द 6 आवर 3.8 सेंटीमीटर डीआरएच, ठीक है, ये भी सेम होगा, क्या हो जाएगा, ये जो भी ऑर्डिनेट्स है इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दिस केस वी हैव टू मल्टीप्लाई विद 3.8 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर का ये डाटा है, तो 3 सेंटीमीटर का कितना होगा, 250 इंटू 3.8 सेंटीमीटर, ठीक है। बट यहाँ पे कहाँ पे प्लेस करेंगे, इट शुड बी लैग्ड बाय 6 आवर, क्योंकि ये तुम्हारा पहले से स्टार्ट हुआ, 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये वाला कब से होगा, आफ्टर 6 आवर से स्टार्ट होगा, ठीक है। सो वी हैव टू यूज, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लाएंगे, लेकिन इट हैज टू बी स्टार्टिंग फ्रॉम 6 आवर, मतलब वी हैव टू लैग आवर डाटा बाय 6 आवर्स, क्योंकि ये नेक्स्ट, ये फर्स्ट रेनफॉल है, सेकेंड रेनफॉल है, सेकेंड रेनफॉल विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट 6 आवर। ओके, तो इट इज लैग्ड बाय नेक्स्ट 6 आवर। देखो ये पूरा जो भी डाटा है इसको मल्टीप्लाई कर देना है 3.8 से, लेकिन उठा के कहाँ से स्टार्ट करना है, 6 आवर्स से। ओके, नाउ टेल मी फॉर दिस केस कहाँ से करना है, क्या करना है, बोलो। यहाँ पे क्या होगा, ये वाला वैल्यू फर्स्ट रो में क्या होगा, कुछ वैल्यू आएगा, इसमें क्या होगा, इन दिस केस, sorry, in this case see we have to find next rainfall is what, next rainfall is your another 6 hour, but उसका rainfall excess कितना है, 2.8, ठीक है, जो हम लोगों ने ये वाला निकाला था। देखो सी, फर्स्ट का है तुम्हारा 1.8 है, सेकेंड का 3.8 है, थर्ड का है 2.8। ओके, उसका हम लोग का ऑर्डिनेट निकाला था, ये 1.8 हो गया, 3.8 इट इज लैग्ड बाय 6 आवर, क्योंकि आफ्टर 6 आवर ये रेनफॉल स्टार्ट हुआ था, तो ऑब्वियसली इसमें तो कोई डाटा नहीं रहेगा, इसे हमको मतलब 6, जब टाइम इज 6 आवर देन ओनली वी विल गेट दैट डाटा, राइट। अब इसमें क्या होगा बोलो, ये वाला नेक्स्ट फर्दर नेक्स्ट 6 आवर और लैग करके आएगा, मतलब टोटल कहां से होगा, फ्रॉम स्टार्ट 12 आवर से स्टार्ट हो जाएगा, राइट। मतलब 6 आवर में तो ये वाला स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट का यहाँ पे स्टार्ट हुआ, सेकेंड का आफ्टर 6 आवर स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब ये जो थर्ड वाला जो रेनफॉल आ रहा है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, नेक्स्ट 6 आवर विच इज व्हेन योर टाइम इज 12, तब से स्टार्ट हो जाएगा, राइट। देखो यहाँ पे डैश डैश है, अब इसी को पूरा मल्टीप्लाई कर देना है 2.8 से, करके उठा के नीचे 12 आवर में प्लेस कर देना है। ओके, नाउ हियर इट इज व्हाट, इट इज योर, we have to use first method which is your superimposition method, यहाँ पे यूज कर सकते हैं। why, because तुम्हारा हम लोग उससे 6 आवर से 6 आवर में ही जा रहे हैं, सिर्फ ओनली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट कन्वर्टिंग यूनिट हाइड्रोग्राफ टू द डीआरएच, राइट। अब हमको सम अप कर देना है इसको, तो व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड अप। ओके, सो द ऑर्डिनेट्स ऑफ द रिजल्टिंग डीआरएच इज व्हाट, ऐड कर दो, दिस इज 0, फिर 450, ये तीनों ऐड करो, 230 करके ये वाला आएगा। बट व्हाट इज द रेनफॉल एक्सेस ऑफ दिस वन, ये है तुम्हारा कितना का है, ये वाला है 1.8 का है, ये वाला है 3.8 का, और ये वाला है 2.8 का। तो अगर हम ऐड कर देंगे तो ये भी तो ऐड होना चाहिए, राइट। सो दिस सेंटीमीटर विल आल्सो गेट एडेड, सो ये ऐड करके देखो 8.4 सेंटीमीटर। नाउ दिस ऑर्डिनेट इज फॉर योर रिजल्टिंग डीआरएच, जिसका क्या है स्पेसिफिकेशन इज 6 आवर एंड 8.4 सेंटीमीटर डीआरएच। ओके, सो दिस इज योर, तो तुम लोग का ये ऑर्डिनेट्स ये वाला आ गया है। नाउ व्हाट दे हैव आस्क्ड, ये निकालना है, डिटरमाइन द रिजल्टिंग हाइड्रोग्राफ फ्लो बोला है, एंड वी हैव ऑब्टेन्ड टिल नाउ डीआरएच ओनली, बट दे हैव आस्क्ड यू टू डिराइव फ्लड हाइड्रोग्राफ, ठीक है। तो तुमको डीआरएच पता है, अब तुमको फ्लड हाइड्रोग्राफ निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, व्हाट वी हैव टू डू, you know DRH, okay, now they have asked you to
टेल मी व्हाट वी हैव टू डू, क्या करना है हमको अब इसके बाद? डीआरएच निकल आया, राइट? यूनिट हाइड्रोग्राफ से हम लोगों ने डीआरएच निकाल दिया, बट हमको फ्लड हाइड्रोग्राफ पूछा गया है, तो क्या करना पड़ेगा? इसके साथ क्या ऐड करना है या माइनस करना है, कुछ करना है इसके साथ, ये वाला डाटा के साथ? फ्लड हाइड्रोग्राफ और डीआरएच का रिलेशन क्या था? दिस इज डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, ठीक है? फ्लड हाइड्रोग्राफ इज द टोटल हाइड्रोग्राफ। No, base flow to यस, वी हैव टू ऐड द बेस फ्लो। बेस फ्लो कितना है? 30 बोल दिया है, ठीक है? तो हम लोग को अब क्या करना है? बेस फ्लो इस सब के साथ ऐड कर देना है। तो आफ्टर एडिंग, नाउ दिस इज योर रिजल्टेंट फ्लड हाइड्रोग्राफ। ओके, क्वेश्चन में कभी कभी तुमको ये नहीं पूछ के बोलेगा फाइंड आउट द मैक्सिमम डिस्चार्ज फ्रॉम द रिजल्टिंग फ्लड हाइड्रोग्राफ। तो ये वाला तो कॉलम निकालना है, उसके बाद देखना विच इज द मैक्सिमम, सपोज दिस वन इज द मैक्सिमम करके शो कर देना है। सो दिस इज द मैक्सिमम। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर। ये वाला देखो समेशन कर भी हम लोग सुपर इम्पोजिशन मेथड ही यूज किए थे। ओके, जैसे कि ये वाला देखो डिस्चार्ज वर्सेस टाइम, दिस इज हाइड्रोग्राफ, ठीक है? ये वाला गिवन है, दिस इज गिवन टू अस, वो जो बोले थे ना 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ डाटा हमको दिया गया है, ठीक है? और यूजिंग दिस 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ हम लोगों ने क्या करना है? हमको जो 3 सक्सेसिव डाटा है उसका डीआरएच निकालना है, ठीक है? तो ये जो फर्स्ट रेनफॉल हुआ उसका एक्सेस रेनफॉल है 1.8 सेंटीमीटर, ड्यूरेशन है 6 आवर, ठीक है? तो इसका करस्पॉन्डिंग तुम्हारा ये है डीआरएच का करस्पॉन्डिंग डीआरएच हमने ये से डिराइव कर दिया, ठीक है? अब नेक्स्ट क्या हो रहा है? दूसरा रेनफॉल आ रहा है जिसका 3.8 सेंटीमीटर है यूनिट डीआरएच एंड इट इज लैग्ड बाय 6 आवर, मतलब अब यहाँ से स्टार्ट होगा। तो देखो ये जीरो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? जीरो स्टार्ट हो रहा है 6 आवर से, ठीक है? 6 आवर से ये जीरो स्टार्ट हो रहा है। तो ये वाला है तुम्हारा 6 आवर 3.8 सेंटीमीटर डीआरएच। अब थर्ड यहाँ से स्टार्ट हो जा रहा है सक्सेसिव, नेक्स्ट थर्ड 2.8 सेंटीमीटर एक्सेस रेनफॉल, 6 आवर ड्यूरेशन है एंड इट इज लैग्ड बाय अगेन नेक्स्ट 6 आवर, मतलब टोटल लैग कितना है? 12 आवर। तो कहाँ से स्टार्ट होगा इसका ऑर्डिनेट? 12 से। ये है 6, ये 0, 6, 12 से, ठीक है? ये ब्लू वाला 0 से हुआ, रेड वाला 6 से, ये वाला 12 से। तो 12 से स्टार्ट होके ये है तुम्हारा 6 आवर 2.8। अब हमको क्या बोला? रिजल्टेंट फ्लड हाइड्रोग्राफ निकालना है, तो पहले रिजल्टेंट डीआरएच निकालते हैं। सो दिस इज द रिजल्टेंट डीआरएच यूजिंग समेशन सुपर इम्पोजिशन मेथड से, ठीक है? अब ये रिजल्टेंट ऐड कर रहे हैं तो हम लोग का ऑर्डिनेट्स के साथ तुम्हारा ये टोटल रेनफॉल का जो है वो भी ऐड हो गया, 8.4 हो रहा है, ठीक है? अब दिस इज द डीआरएच। अब डीआरएच से हमको फ्लड हाइड्रोग्राफ निकालना है, तो क्या करना है? हमको बेस फ्लो ऐड कर देना है, मतलब इसको और उठा देना है। तो कितना बेस फ्लो ऐड करेगा? 30 क्यूमेक्स। उठा के देखो, अब यहाँ से तुम्हारा नेक्स्ट ऑर्डिनेट स्टार्ट हो रहा है विच इज दी 18 आवर 8.4 सेंटीमीटर फ्लड हाइड्रोग्राफ। दिस इज द रिजल्टिंग हाइड्रोग्राफ। क्लियर? क्लियर? आई थिंक क्लियर है। तो शैल आई प्रोसीड? Yes, ma'am. ओके, नाउ ये सब है तुम्हारा प्रीवियस रिवीजन। ओके, नाउ वी विल गो टू द कॉम्प्लेक्सिटी आवर्स। m t is equals to md where n is always greater than इंटीजर ही होना चाहिए था और t is greater than d होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी केस हो सकता है कि जहां पे तुम्हारा ये कंडीशन दिया रहेगा, देखो योर t may be greater और may be lesser than d, जो दिया गया है उससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो इन दैट केस वी हैव टू यूज एस कर्व, ठीक है? एंड दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन टी एंड डी, मतलब डी आवर दिया गया है, तुमको बोला है सपोज 2 आवर हाइड्रोग्राफ दिया है, बोला है 4 आवर हाइड्रोग्राफ निकालो। 2 आवर हाइड्रोग्राफ दिया है, बोला है 3 आवर हाइड्रोग्राफ निकालो, ठीक है? बट पिछले वाले में क्या था? 2 आवर से 4 आवर, 2 आवर से 6 आवर, यही होता था इंटीजर वाइज, ठीक है? मतलब m इज 1 2 3 4। तो तुम्हारा d अगर 2 होता तो t का वैल्यू 2 4 6 ऐसा होता है, लेकिन when your d is something suppose 2 hours है और तुम्हारा t कैपिटल T है 3 hours, now m will be what? m will be your 1.5, मतलब इंटीजर नहीं आएगा, एक फ्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है? so in that case s curve method is used, मतलब ये हर मेथड में we can use s curve method, okay, whatever condition, so it may be integer और फ्रैक्शन, ठीक है? जैसे एक कंडीशन देखो 3 आवर्स से तुमको 6 आवर निकालने के लिए बोला गया है, सॉरी यहाँ पे d होगा, ये सपोज दिस इज d एंड दिस इज t, ओके? तो
D है 3 आवर, T is 6 आवर, देन M will be your 2. ओके अब यहाँ पे देखो D है तुम्हारा 6 आवर, अब तुमको दिया है 6 आवर डाटा, बोला है 3 आवर डाटा निकालो, तो इन दिस केस योर M is 0.5. सो ये इंटीजर भी है, फ्रैक्शन भी है, ठीक है. सो इन सच केसेस वी कैन इजीली यूज एस कर्व मेथड. ओके तो अब क्या है एस कर्व डेफिनेशन क्या है? इट इज बेसिकली द हाइड्रोग्राफ प्रोड्यूस्ड बाय अ कंटिन्यूअस इफेक्टिव रेनफॉल. ये याद रखना, ठीक है. ये वाला क्या है कि अगर कंटिन्यूअस रेनफॉल होता रहेगा थ्रू आउट द डे, मतलब पूरा बारिश होता रहे तो उससे जो हाइड्रोग्राफ हम लोग निकल रहा है दैट इज योर एस कर्व. ओके एंड योर इंटेंसिटी इज कांस्टेंट, ठीक है. फॉर कितना ड्यूरेशन के लिए? मतलब लगातार होता ही जा रहा है, इनफाइनाइट पीरियड के लिए. तो दैट इज द एस कर्व. उस पे जो भी हम लोग हाइड्रोग्राफ मिलेगा, ठीक है, रिजल्टेंट हाइड्रोग्राफ, दैट विल गिव यू द एस कर्व ओनली, ठीक है. जैसे देखो 1 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रहा है, इसका ये है यूनिट हाइड्रोग्राफ, ठीक है. अब ये खत्म होंगे, दूसरा तीसरा होता जा रहा है, ऐसा, ठीक है, ऐसा कंटिन्यू होता जाएगा, ठीक है. तो कंटिन्यू होता जाएगा. इसकी वजह से जो रेनफॉल आ रहा है, इसकी वजह से जो रिजल्टेंट हाइड्रोग्राफ प्रोड्यूस हो रहा है, ये वाला को बोलते हैं, जैसे ये ग्रीन है, इट विल बी लाइक दिस. ओके इफ वी सम अप एवरीथिंग वी विल गेट लाइक दिस कर्व. ओके सो इसको बोलते हैं एस कर्व. So it is what? It is the hydrograph for the continuous effective rainfall. The continuous ये मतलब और भी चलता रहेगा infinity times तक, ठीक है. And at constant rate, एक ही रेट में ये जा रहा है, ठीक है. इसका रेट कितना है यहाँ पे देखो, इतना रेनफॉल हो रहा है इतना आवर में, मतलब 1/d is the rate. और इंटेंसिटी इसमें भी देखो 1/d होता जा रहा है. ओके दिस इज द एस कर्व. अब ये यूजिंग दिस एस कर्व वी कैन इजिली डिराइव दोज फॉर्मूला, मतलब हाइड्रोग्राफ, यूनिट हाइड्रोग्राफ, हम सब कुछ कर सकते हैं इससे. ओके नाउ हाउ टू डिराइव एस कर्व फ्रॉम अ गिवन यूनिट हाइड्रोग्राफ. तुमको यूनिट हाइड्रोग्राफ दिया है, बोला गया है एस कर्व निकालो, तो कैसे हम लोग का एस कर्व होगा? सपोज दिस इज द डाटा. ओके टू आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ का ऑर्डिनेट्स तुमको दिया है, ठीक है. अब बोलेगा इससे तुमको एस कर्व निकालो. पहले से they will give you 2 hour unit hydrograph, then they will ask you suppose 4 hour DRH या flood hydrograph या 3 hour flood hydrograph निकालो, ठीक है. तो उसके लिए what we have to do, first we have to derive S curve, फिर using that S curve we can easily go for other hydrograph. ओके तो पहले हमको S curve निकालना है, तो इसीलिए फर्स्ट स्टेप क्या है, हमको S curve कैसे निकालते हैं वो सीखना है. तो कैसे निकालेंगे? अगर तुमको यूनिट हाइड्रोग्राफ दिया गया है तो यूजिंग दिस यूनिट हाइड्रोग्राफ हम S curve कैसे निकालेंगे. ओके सपोज ये वाला तुम्हारा यूनिट हाइड्रोग्राफ दिया है और इसका बेस पीरियड है कितना? बेस पीरियड देखो कहाँ से शुरू हुआ है, 0 से शुरू हुआ, कहाँ पे खत्म हुआ? 8 पे. सो बेस पीरियड इज योर 8 आवर्स, ये याद रखना. ओके दिस इज द बेस पीरियड. और इसका ड्यूरेशन कितना है? 2 आवर्स है, ठीक है. तो अब करेंगे क्या हम लोग को? हम लोग को ये बोला दिस इज द व्हाट, दिस इज द कंटिन्यूअस, मतलब ये रेनफॉल फिर से होगा, सेम फिर से दोबारा होगा आफ्टर 2 आवर्स, आफ्टर 2 आवर्स ऐसे करके, ठीक है. सो लैग्ड बाय 2 आवर्स, ठीक है, ये वाला हो गया. अब फिर से हो जाएगा नेक्स्ट लैग्ड बाय, अगेन लैग्ड बाय 2 आवर्स, मतलब क्या होगा? ये आफ्टर 4 आवर. देखो ये 0 यहाँ पे था, अब इसको उठा के हम 2 में बिठा दिए, ठीक है, लैग्ड बाय 2 आवर्स. अब दूसरा क्या हो जाएगा? आफ्टर 2 आवर्स, मतलब टोटल कहाँ से लैग होगा? यहाँ से 2 और 2 मिलाकर 4 से स्टार्ट, आफ्टर अगेन 4 आवर्स, ठीक है. अब फिर से देखो अगेन लैग्ड बाय 6 आवर, मतलब फर्दर 2 आवर्स, मतलब अब यहाँ पे 6 आवर्स से हो जाएगा, ठीक है. तो कब तक करना है हमको ये? मतलब कितना दूर तक ऐसा एडिशन करते जाना लैग करते जाना. तो उसके लिए बोला गया है कि कब तक करना है उसके लिए. सो नंबर ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ रिक्वायर्ड फॉर एस कर्व इज दिस फॉर्मूला. बेस पीरियड जितना है उसको डिवाइड कर दो ड्यूरेशन से. सो यहाँ पे कितना हाइड्रोग्राफ लगेगा? कितना हाइड्रोग्राफ लगेगा एस कर्व बनाने के लिए? 8/2. तो 4 numbers of hydrographs are required for constructing the S curve. मतलब कितना दूर हम ये एडिशन करते जाएंगे. ये तो इन्फिनिटी टाइम्स बोला है ना, तो कितना दूर तक हम करेंगे. तो ये बोला गया है एज पर दिस डाटा, यहाँ पे TB is 8 and D is 2 hours. So your number of unit hydrograph required is 8/2, TB by D 8/2 which is 4. तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4. अब यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे. नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल एड अप.
अब हमको एस कर्व चाहिए ना, तो एस कर्व के लिए क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, तो सबको ऐड कर दिया। अच्छा यहाँ पे 50 होगा, ओके, ये 60 कर दिए हम, दिस विल बी 50, ओके। तो करके नाउ इफ वी प्लॉट दिस वन देन वी आर गेटिंग दिस कर्व। देखो जीरो, यहाँ पे जीरो में जीरो है, ठीक है, 2 में 10 है, फिर तुम्हारा 30 में 40 है, सॉरी 4 में 40 है, देखो 4 में यहाँ पे होगा 40 के आसपास होगा, ठीक है, 6 में तुम्हारा 50 होना चाहिए था ना, यहाँ पे 60 कर दिया हम लोग। तो यहाँ पे देखो 8 में जाके तुम्हारा 8 और 10 में जाके 60 में जाके ये कांस्टेंट हो गया, 60 कांस्टेंट हो जा रहा है। सो यहाँ पे देखो इट विल नाउ गेट अ कांस्टेंट वैल्यू। तो दिस इज वे हाउ वी हैव टू कंस्ट्रक्ट एस कर्व, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मतलब तुम अगर ये बोला बहुत ह्यूज वैल्यू है, अगर ये टीबी का वैल्यू बहुत बड़ा है, टी का वैल्यू 2 आवर्स है सिर्फ, ठीक है, सपोज टीबी का वैल्यू 20 है और यहाँ पे 2 है डी का वैल्यू, सो योर नंबर ऑफ हाइड्रोग्राफ रिक्वायर्ड इज 10। तो तुम ये 10 टाइम्स ये ऑर्डिनेट ऐसे करते करते जाओगे, सो इट विल बी लिटिल बिट हेक्टिक, ठीक है। तो करना क्या है, वो हमको उसको सिंपली करना है, सिंपल वे में करना है। दो तरीका है, ठीक है, दो तरीके से हम बोल सकते हैं। तो फर्स्ट तरीका क्या है तुम्हारा, ये जो प्लॉट किया यूनिट हाइड्रोग्राफ, ठीक है, दिस इज गिवन टू यू, ठीक है, ये हम बाद में आएंगे, ये क्या है, एस कर्व एडिशन क्या है, एंड दिस इज द ऑर्डिनेट, मतलब कुछ नहीं, जो दिया गया है उसमें ये एडिशन करना है, फिर वी विल गेट द एस कर्व ऑर्डिनेट, ओके। इसको ये जो ऐड करना है इसको बोलते हैं एस कर्व एडिशन। ये वाला कैसे आ रहा है आई विल शो यू। तो पहले प्लॉट करते हैं, चलो यू नॉट यहाँ पे प्लॉट किया, ठीक है, दिस इज व्हाट यूनिट हाइड्रोग्राफ फॉर 0 आवर, ओके, यूनिट हाइड्रोग्राफ फॉर 0 आवर, ओके, 0 में है। फिर है तुम्हारा देखो यूनिट हाइड्रोग्राफ फॉर 10 सॉरी फॉर 2 आवर, एट 2 आवर टाइम इक्वल्स टू 2, योर यूनिट हाइड्रोग्राफ इज 10 है, ठीक है। फिर ऐसा करके देखो एट टाइम इक्वल्स टू 4 इट इज 30, एट टाइम इक्वल्स टू 6 इट इज u3 इज व्हाट 20, ठीक है, एंड एट टाइम इक्वल्स टू 8 u4 इज व्हाट योर 0, ठीक है। तो यहाँ पे 0 करके हम लोगों ने ये प्लॉट कर दिया, okay. Now in order to derive the S curve from this single unit hydrograph, क्या करना है, we have to add something values and that is called the S curve addition, ठीक है। तो add क्या करना है, देखो यहाँ पे add करना है तुम्हारा ये वाला, इसको blank रख देना है, ठीक है। तो ये add हो गया, मतलब यहाँ पे your addition will be 0, ठीक है। अब इसके साथ जब S1 निकालेंगे, S1, ठीक है, उसमें क्या ऐड करना है, इसके साथ U2 ऐड करना है, सॉरी यू नॉट ऐड करना है, मतलब जो पीछे वाला जो था, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, देखो u1 प्लस यू नॉट प्लस u1 ऐड करना है, सक्सेसिव जो भी है, तो मतलब पीछे वाला क्यूमुलेटिव वे में ऐड करते करते जाना है। जैसे देखो यहाँ पे u नॉट के पहले कुछ नहीं था तो कुछ एडिशन नहीं किया, u1 के पहले तुम्हारा u नॉट था, u2 के पहले u नॉट प्लस u1 था, ठीक है, u3 के पहले u नॉट u1 u2 था। अब यहाँ पे क्या था, u4 के पहले u नॉट u1 u2 u3 ऐड कर देना है। So after adding the ordinate that we will get is S0, S1, S2, S3, S4 को प्लॉट कर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो U1 U नॉट के साथ कुछ नहीं है, इसके पहले कुछ नहीं था वैल्यू, तो कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या ऐड करके कितना हो रहा है, 0 प्लस समथिंग 0, ठीक है, 0 प्लस ब्लैंक 0। अब इसमें क्या है, U1 के जगह पर किसके साथ ऐड करना है, पिछले वाला जो वैल्यू था, पिछले वाला यूनिट ऑर्डिनेट जो था U नॉट, ठीक है, which is 0। देखो कितना होगा, 10 प्लस 0 10, ठीक है। अब U2 के साथ क्या ऐड करना है, ये दोनों का समेशन ऐड करना है, पिछले वाला क्यूमुलेटिव का समेशन इज व्हाट 0 प्लस 10 इज 10, ठीक है। तो ये ऐड कर दो 40 होगा। और U3 के साथ कौन सा ऐड करना है, इसके पहले ऊपर वाला जो पहले वाला था सबका एडिशन, मतलब U0 प्लस U1 प्लस U2 कितना है, 0 प्लस 10 प्लस 30 40। सो U3 के साथ 40 ऐड करेंगे, वी विल गेट S4। U4 के साथ ये तीनों ऐड कर दिया, ठीक है, करके ये चारों ऐड कर दिया, 0 10 30 20, ओके, विच इज 60। तो 0 प्लस 60 इज 60। देखो जहां पे कांस्टेंट हो जा रहा है, तो दैट इज योर एस कर्व अपना कांस्टेंट डिस्चार्ज रीच कर चुका है, ओके। सो लाइक दिस वे यू कैन डू, एक ऐसा कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा मेथड क्या है, अच्छा ये वाला क्लियर है, क्या किया हम लोगों ने,
सी इसके पहले कुछ नहीं था तो ब्लैंक, इसके पहले ये यू नॉट था तो यहाँ पे यू नॉट डालो, इसके पहले ये दोनों था तो दोनों का समेशन डालो, इसके पहले ये तीनों था तो तीनों का समेशन, इसके पहले ये चारों था ये चारों का समेशन, देन सिंपली ऐड कर दो। ओके तो ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, जैसे ये है, ठीक है। तो एस नॉट का एस नॉट ही है, ठीक है, मतलब यही है जो था पहले, ठीक है। अच्छा था, अच्छा। अब दूसरा मेथड क्या है कि दूसरा मेथड है हमको इजी, और एक इजी मेथड है, ठीक है, और एक इजीली इतना नहीं करने के वजह से तुम और एक इजी कर सकते हो। वो क्या है कि सपोज दिस इज द यूनिट हाइड्रोग्राफ गिवन टू यू, ओके। तो फर्स्ट में क्या करना है, हमको एस कर्व एडिशन फर्स्ट में ब्लैंक रखना है, ठीक है। तो डायरेक्ट ये जो भी वैल्यू है उसको इस तरफ लेकर जाओ, तो दैट विल बी योर एस कर्व ऑर्डिनेट फॉर द फर्स्ट, ये फर्स्ट वैल्यू है ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू आया है उसको तुम यहाँ पे शिफ्ट कर दो, ठीक है। सो दैट विल बी योर नाउ SA1, मतलब एस कर्व एडिशन नंबर 1, ठीक है। तो क्या करना है, 10 + 0 विल गिव यू 10। अब इसको ये वाला जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगा उसको फिर से नीचे लेकर जाओ, दैट इज SA2। तो ये क्या है, 30 + 10 विल गिव यू नाउ 40, ठीक है। अब ये 40 को तुम इधर लेकर जाओ, अब 20 + 40 विल गिव यू 60, 60 को तुम इधर लेकर जाओ, 0 + 60 विल गिव यू 60, ओके। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज मोर इजियर, राइट। ये वाला शायद पिछले से थोड़ा इजी है, कुछ नहीं, तुम्हारा इसको पहले यहाँ पे शिफ्ट कर दो, यहाँ का वैल्यू कोई नीचे, फिर यहाँ से दोनों को ऐड करके यहाँ पे करो, यहाँ से फिर नीचे दोनों का ऐड करके इधर करो, फिर यहाँ से नीचे फिर दोनों का ऐड करके यहाँ पे करो, ये वाला वैल्यू को नीचे दो फिर ऐड करो। क्लियर, एनी डाउट? ये वाला मेथड आई थिंक इजी है, ऐसे करने से इजी रहेगा। अब ये वाला क्या है, देखो, दिस इज व्हाट, दिस इज योर फ्रॉम यूनिट हाइड्रोग्राफ हाउ वी विल डिराइव एस कोऑर्डिनेट, ठीक है। लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे देखता है, देखो, डिराइव एस कर्व, जैसे है कि फॉर द 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ हैविंग ऑर्डिनेट्स एट 4 आवर टाइम इंटरवल, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्या है तुम्हारा, दिस इज योर 2 आवर और इसका टाइम इंटरवल इज 2 ओनली, ये भी 4 आवर है, ठीक है, 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ है और टाइम इंटरवल ये भी 4 करके दिया है। तो इसमें सिंपल जो बोले थे वही करना है, जैसे इसको इधर लेकर जाओ, ठीक है, फिर इसको नीचे, फिर यहाँ पे एडिशन करो, देखो 10 + 0 10 है, 10 वैल्यू को इधर लेकर आओ, फिर 30 + 10 40 है, ठीक है, फिर 40 को इधर नीचे लेकर आओ, 25 + 45 40 कितना है 65, फिर 65 को नीचे लेकर आओ, 18 + 65 इज 83, फिर 83 को नीचे लेकर आओ, 10 + 83 93, 93 को ऐसे करो, ठीक है। ये सिंपल है, मतलब कि इसका 4 आवर यूनिट ऑर्डिनेट है, यूनिट हाइड्रोग्राफ है, और इसका टाइम इंटरवल भी 4 आवर्स के बीच का ही दिया गया है। लेकिन कभी कभी तुम लोग को ऐसा भी दिया रहेगा कि 4 आवर यूनिट ऑर्डिनेट है, लेकिन क्या दिया है, जैसे ये 0 2 4 ऐसे करके दे देगा, तब हम लोग कैसे एस कर्व डिराइव करेंगे। अगर ये 4 आवर है, ये भी 4 आवर है, देन ऐसे सिंपल सिंपल करके जाना है, ओके। Now, if it is the derived S curve for the 4 hour unit hydrograph having ordinates at 2 hour interval, जो हम बोले थे, अब यहाँ पे देखो ये 4 hour unit hydrograph है, but interval is 2 hours, पिछले में क्या था 4 hour unit hydrograph, interval is 4 hour, ठीक है। तो any idea इसका क्या करना पड़ेगा, इसमें कितना वैल्यू को यहाँ पे शिफ्ट, यहाँ पे जैसे 4 आवर तो इसको सिंगल यहाँ पे शिफ्ट कर दिए हम लोगों ने, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है 4 आवर है, लेकिन दिस इज 2 आवर करके गैप के अंदर है, ठीक है। तो अब हमको इसमें क्या करना है, इसमें दोनों वैल्यू को उठा के इस तरफ लेकर जाना है, ये है फर्स्ट 2 आवर्स, ये है सेकेंड 2 आवर्स, तो टोटल इज 4 आवर्स, तो दोनों ही कहीं हमको इधर शिफ्ट कर देना है, ठीक है। दोनों को शिफ्ट कर दिया, अब इसको तुम नीचे दोनों को एक साथ फिर से यहाँ पे शिफ्ट कर दो, यहाँ पे फर्स्ट एडिशन विल बी नथिंग, तो इसीलिए जो भी है यही वैल्यू यहाँ पे रहेगा, ठीक है। इसको अब फिर से नीचे शिफ्ट कर दो, और नीचे शिफ्ट करके क्या करना है, क्या क्या ऑर्डिनेट आएगा बोलो, इस साइड में कौन सा ऑर्डिनेट आएगा,
What will be the ordinate for time interval 4 and time interval 6? क्या होगा यहाँ पे वैल्यू? At time equals to 4, S curve ordinate कितना होगा? At time equals to 4, S curve ordinate will be 33, and at time equals to 6, your S curve 96. ordinate is 96. ठीक है, ये तो 96 हो गया. ठीक है, अब ये दोनों को फिर से उठा के नीचे लेकर आओ. 33 96 को आप इन दोनों के साथ ऐड कर दो, ऐसा. ठीक है, अब यहाँ पे एक ही आएगा, 256 256 कॉमन ही है, देखो. ठीक है, लास्ट में जाके सिंप्लीफाई होता जाएगा. तो यहाँ पे आके देखो, अल्टीमेटली वी आर गेनिंग द कांस्टेंट वैल्यू. तो जहाँ पे कांस्टेंट होगा मतलब तुम्हारा एस कर्व अटेंड हो गया है और फर्दर ऐड करने का जरूरत नहीं है. ओके, सो दिस वे वी कैन डिराइव एस कर्व फॉर डिफरेंट ड्यूरेशन एंड फॉर डिफरेंट टाइम इंटरवल. ओके, वैसे एक एग्जांपल है, देखो. डिराइव एस कर्व फॉर 3 आवर ऑर्डिनेट्स हैविंग क्या है, ऑर्डिनेट्स एट 1 आवर इंटरवल. ठीक है, अगर 3 3 होता तो सिंपल एक एक करके उठा के ले जाते, लेकिन यहाँ पे कितना है, 1 आवर करके गैप में इंटरवल में ये दिया है. तो यहाँ पे तीनों को उठा के लेकर जाना है. ओके, फिर से नीचे आ गया, फिर ये दोनों ऐड कर दो, यहाँ पे चला जाएगा, फिर इसको इधर कर दो, यहाँ पे चला जाएगा. ओके, सो इन दिस वे यू कैन डिराइव एस कर्व ऑर्डिनेट. क्लियर है ना? And see, this is what, this is actually the maximum discharge that will be attained by the S curve. ठीक है, तो इसका वैल्यू भी तुमको पूछा जाएगा. डिराइव द इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज, और वी कैन से इन एमसीक्यूज, और तुम्हारा गेट वेव में आ सकता है. इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज निकालो फॉर एस कर्व, या मैक्सिमम डिस्चार्ज निकालो फॉर एस कर्व. ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला, आइदर दिस और दिस. नाउ A into 1/D, 1/D is intensity of the rainfall, A is the catchment area in kilometer square. ओके, ये वाला है. अब थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं. ये तो हो गया तुम्हारा डिराइविंग एस कर्व फ्रॉम द यूनिट हाइड्रोग्राफ. नाउ उल्टा. ठीक है, अब तुमको क्या चाहिए, व्हाट वी आर डूइंग, हमको तो एस कर्व निकालना, क्वेश्चन नहीं देगा, बोलेगा कि समथिंग डी आवर हाइड्रोग्राफ टी और हाइड्रोग्राफ में कन्वर्ट करो, ऐसा बोलेगा. राइट, तो बीच में हमको एस कर्व चाहिए था, तो हम देख लिए कैसे डिराइव करना है एस कर्व को. अब यूजिंग द एस कर्व वैल्यू we have to go for the further process. तो further process क्या है कि derivation of unit hydrograph. फ्लड हाइड्रोग्राफ के लिए क्या चाहिए, DRH चाहिए, और उस DRH के लिए यूनिट हाइड्रोग्राफ चाहिए. तो पहले यूनिट हाइड्रोग्राफ डिराइव करेंगे फ्रॉम एस कर्व. ओके, वी हैव ऑलरेडी डन हाउ टू कन्वर्ट यूनिट हाइड्रोग्राफ टू एस कर्व. नाउ वी विल सी हाउ टू कन्वर्ट एस कर्व टू यूनिट हाइड्रोग्राफ. ओके, तो एक एग्जांपल देखो, ये वाला एक एग्जांपल है, सेम एग्जांपल. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सॉरी, ये है तुम्हारा इंफिनिटी. हम क्या बोले थे, योर रेनफॉल विल बी फॉर कांस्टेंट रेट, जिसका रेट है 1/D, 1 सेंटीमीटर डी आवर करके, 1/D इज द कांस्टेंट रेट. ठीक है, और फॉर इन्फिनिटी टाइम, ये इन्फिनिटी टाइम्स के लिए ये रेनफॉल होता जा रहा है. ठीक है, नाउ दिस इज व्हाट, दिस ये जो भी है, दिस इज द रेनफॉल एक्सेस फॉर एस कर्व ए, या कोई भी एक रेनफॉल है जो है ए. ठीक है, ये वाला शो करता है. नेक्स्ट रेनफॉल क्या करता है, ये वाला. नेक्स्ट रेनफॉल क्या है, आफ्टर 4 आवर्स या आफ्टर T आवर्स तुम्हारा दूसरा इंटेंसिटी इंफिनिटी टाइम्स वाला एक रेनफॉल स्टार्ट हो गया है. ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं, कुछ नहीं, हमको क्या करना है, वी आर सिंपली लैगिंग, इसको उठाकर लैग करके इस वाले टाइम से वी आर स्टार्टिंग, मतलब T टाइम से वी आर स्टार्टिंग सेकेंड इनफाइनाइट वाला रेनफॉल. ओके, सपोज दैट इज B. तो फर्स्ट रेनफॉल के लिए, फर्स्ट इन्फिनिटी रेनफॉल के लिए एस कर्व ये है, सेकंड इन्फिनिटी रेनफॉल के लिए एस कर्व ये है, एंड दिस टू एस कर्व्स आर प्लेस्ड T आवर्स अपार्ट. हमको क्या बोला है, बोला गया है D आवर से T आवर हाइड्रोग्राफ निकालो. तो सपोज 2 आवर से 4 आवर बोला है, तो ये सपोज 4 आवर अपार्ट हमको ले जाना है. ठीक है, अब ये T कुछ भी हो सकता है, 4 5 6 कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो एस कर्व हमको निकल आया, वी नो द वैल्यू ऑफ दिस एस कर्व. ठीक है, सिंपली यही एस कर्व को उठा के कहाँ पे लेना, आफ्टर T आवर प्लेस कर देना है. तो इसका भी सेम यही कर्व है, यही सेम कर्व होगा, सिंपली ये लैग हो जाएगा बाय T आवर्स. ओके, तो अब तुमको क्या चाहिए, T आवर्स DRH निकालने के लिए बोला गया है यूजिंग दिस एस कर्व.
ये दोनों का वैल्यू ऑर्डिनेट इज सेम, ओनली ये टाइम लैग हो गया है, ठीक है, ये 0 से स्टार्ट है, ये t आवर्स से स्टार्ट है, दोनों का ऑर्डिनेट विल बी सेम, ठीक है। यूजिंग दिस वैल्यू दे हैव आस्क्ड यू टू डिराइव DRH फॉर द t आवर्स, तो कैसे निकलेगा, दिस इज द DRH ऑफ द t आवर्स, ओके। ये वाला इतना जो रेनफॉल है, दिस इसका जो हाइड्रोग्राफ हमको मिलेगा या ऑर्डिनेट्स हमको जो मिलेगा, दिस विल गिव यू द t आवर्स फ्लड हाइड्रोग्राफ, सॉरी DRH, ओके, t आवर्स DRH। मतलब अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये रेड माइनस येलो करके तो ग्रीन आ रहा है ना, इतना माइनस येलो करके तो ये ग्रीन वाला प्लेस हो रहा है, राइट। तो वैसे हमको SA ऑर्डिनेट माइनस SB ऑर्डिनेट कर देंगे, तो हमको जो भी ऑर्डिनेट्स का वैल्यू आएगा रिजल्टेंट, दैट विल गिव यू द DRH ऑफ, ये जो DRH ऑफ t आवर्स, ठीक, क्यों t आवर्स, बिकॉज हम लोगों ने t आवर लैग कर दिया, ठीक है। तो सेम देखो S कर्व ये गिवन है, ठीक है। अब हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं कि हमको लैग करना है 4 आवर्स में, 4 आवर्स का हमको चाहिए, ठीक है, 4 आवर DRH चाहिए, तुम्हारा S कर्व 2 आवर से 2 आवर S कर्व से हमको 4 आवर DRH चाहिए, तो क्या करेंगे हम सिंपली ये डाटा को उठा के 4 से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिफरेंस, मतलब माइनस करना है, तो 0 10 40 50 माइनस कर दिया, ठीक है। नाउ दिस ऑर्डिनेट इज नथिंग बट दी, क्या बोले थे, इट इज द DRH ऑफ t आवर्स, कुछ नहीं, देखो ये माइनस ये करके ये वाला आ रहा है, एंड दिस इज द DRH ऑफ द t आवर्स, ओके। तो यही है जो वैल्यू है ऑर्डिनेट जो भी हमको मिलेगा सब्ट्रैक्ट करके, दिस इज द ऑर्डिनेट्स ऑफ द t आवर DRH, ओके। अब तुमको क्या बोला गया है, हमको लेकिन यूनिट हाइड्रोग्राफ चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमको देखना है कि इसका रेनफॉल एक्सेस कितना है, ये वाला DRH इज फॉर मोर देन 1 सेंटीमीटर रेनफॉल एक्सेस, ठीक है। अगर DRH 1 सेंटीमीटर का होगा, दैट विल बी योर यूनिट हाइड्रोग्राफ, ठीक है। तो इस ऑर्डिनेट को हमको कुछ सेंटीमीटर से डिवाइड कर देना है इन ऑर्डर टू गेट द यूनिट हाइड्रोग्राफ। DRH डिवाइडेड बाय एक्सेस रेनफॉल विल गिव यू यूनिट हाइड्रोग्राफ। अब यूनिट हाइड्रोग्राफ के लिए हमको क्या चाहिए, क्या चाहिए, वो रेनफॉल एक्सेस कितना है वो देखना है। उसके लिए क्या करना है, रेनफॉल एक्सेस इज गिवन बाय D/D, ठीक है, कुछ नहीं, ये इंटेंसिटी क्या है, देखो ये है तुम्हारा 1/D, ठीक है। तो t आवर्स में कितना रेनफॉल एक्सेस होगा, अगर इंटेंसिटी है 1 सेंटीमीटर पर d आवर में रेनफॉल हो रहा है, तो t आवर में कितना रेनफॉल एक्सेस होगा, सिंपली इंटू d कर t कर देंगे, सो वी आर गेटिंग 1/D इंटू t इज t/D, ओके। सो 4/2, ठीक है, 4 आवर्स का हमको चाहिए, 2 आवर्स का इसका गिवन है, ठीक है। सो 2 सेंटीमीटर से, so this is what, this is actually t hour DRH and t hour and 2 सेंटीमीटर DRH है, ये वाला है t hour 2 सेंटीमीटर DRH का ऑर्डिनेट्स ये है। अब इससे तुमको यूनिट हाइड्रोग्राफ चाहिए, तो क्या करना है, सिंपली हमको डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, क्योंकि उसका रेनफॉल इस वाले का है 2 सेंटीमीटर के लिए है DRH, अब हमको 1 सेंटीमीटर का DRH निकालना है, तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। Now 1 centimeter DRH is nothing but the UH, unit hydrograph. So in this way you can easily use this, कि कैसे, देखो पहले हम यूनिट हाइड्रोग्राफ से S करके, अब यहाँ से S कर्व यूज करके हम लोगों ने यूनिट हाइड्रोग्राफ डिराइव किया, ठीक है। यहाँ से देखो इससे पहले क्या किया था, 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ से S कर्व निकाला, ठीक है। अब 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ से हम लोग 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ कैसे निकाल रहे, पहले S कर्व निकाला, फिर उससे हमको 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ मिल गया, ओके। अब इसमें तुम क्या बोलते हैं, फिर से दूसरा DRH निकालने के लिए क्या करोगे, दूसरा एक्सेस रेनफॉल का मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर बेस फ्लो ऐड कर दोगे, देन फाइनली यू विल गेट द फ्लड हाइड्रोग्राफ, ओके। सो इज दिस क्लियर टिल नाउ, बोलो। वहां पे क्या करना था, यहाँ पे तुमको एडिशन करना था, एस कर्व एडिशन, इन ऑर्डर टू गेट एस कर्व वी हैव टू एडिशन, डू एडिशन, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, हमको पहले लैग कर देना है, देखना है कि कितना आवर का हमको चाहिए यूनिट हाइड्रोग्राफ, उतना ही आवर लैग कर देंगे। अगर यहाँ पे 6 आवर बोला है तो हमको यहाँ से ऑर्डिनेट स्टार्ट करना था, मतलब 0 10 40 ऐसे जाता है, ठीक है। अगर बोलता है 2 आवर्स का अगर चाहिए तो फिर से यहाँ पे 2 आवर्स में स्टार्ट कर दे, 0 10 40 ऐसे करके, ठीक है। 2 आवर्स से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, जितना भी बोलेगा जिस हिसाब से। फिर क्या करना है, डिफरेंस करना है, इन दिस केस वी हैव टू सब्ट्रैक्ट,
ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करके जो भी वैल्यू आएगा दैट विल गिव यू द टी आवर टी बाई डी डी आर एच। ओके, टी आवर टी बाई डी सेंटीमीटर डी आर एच। अब हमको क्या चाहिए, टी आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ चाहिए, तो हमको टी बाई डी से डिवाइड कर देना है। ओके, ऐसे किया है। ओके देन यहीं तक करेंगे एंड वी विल सॉल्व दिस वन टुमारो। ओके, बेस्ड ऑन दिस डिराइवेशंस एंड ऑल। यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस, हम क्वेश्चन दे दिए हैं, तुम प्रैक्टिस कर सकते हो ये वाला प्रॉब्लम। एनी डाउट? ঠিক আছে, इतना दूर तक ही करेंगे आज। ओके, विल कंटिन्यू टुमारो प्रॉब्लम।